اور براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں جہاں پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سائے کے تلے شروع ہوئی ہیں اور پاکستان میں آمریتوں کے خلاف، پاکستان میں جمہوریت کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں اس میں ہائی کورٹ کا یہ جو درخت ہے اس کے نیچے جو وکلا کا کردار ہے وہ ہمیشہ بڑا اہم رہا ہے. تو آج اسی درخت کے سائے کے نیچے ہم ایک اور جدوجہد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے لیے آئے ہیں، اور وہ جدوجہد یہ ہے کہ جو پنجاب کی عوام ہیں ان کو ان کا ایک آئینی حق دیا جائے اور ایک آئینی اور قانونی حکومت یہاں پہ ہونی چاہیے. حمزہ شہباز کی جو موجودہ حکومت ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، ان کا جو کابینہ ہے وہ غیر آئینی ہے، اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پنجاب کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ جس طریقے سے میرا بہت احترام ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور لاہور ہائی کورٹ کا، لیکن یہ مقدمہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، معمول کا کیس ہے اور ہم آرام سے اس کو دیکھتے جائیں گے. کوئی جس طرح زمین کا کیس ہے 14-16 سال لگ جاتے ہیں، یہ کیس تو ڈے ٹو ڈے، بلکہ اس میں تو عدالت کو 10 گھنٹے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز پی ٹی آئی کے 25 لوٹوں کے ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ اور نام نہاد وزیر اعلیٰ بن گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا صدر مملکت کے ریفرنس کے اوپر، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی جو ووٹ ہے دوسری جماعت کا وہ ان وائلیشن آف پارٹی پالیسی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب بڑا سمپل ہو گیا کہ جو 25 ووٹ ہیں حمزہ شہباز کے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں ان کے کاؤنٹ سے. ان کا ووٹ 192 تھا، وہ 170-71 رہ جاتا ہے. اب اس کے بعد جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ نے وہ ووٹ ایکسکلوڈ کر دینے تھے اور اس کو منہا کر دینا تھا ووٹوں سے، تو حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب اس نقطے کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. حسبہ کیس جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ جو ایڈوائزری جوڈیشن میں جو اوپینین دیتی ہے وہ فیصلے کا درجہ رکھتی ہے. اب ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ اپنا جو ہے وہ شروع کر دے. سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں پورے پاکستان کے اوپر، پورے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بشمول لاہور ہائی کورٹ. لیکن لاہور ہائی کورٹ میں یہ نقطہ جو ہے اس کے اوپر بحث ہی ختم ہونے کو نہیں آ رہی. یہ نقطہ ایک شیطان کی آنت بن گیا ہے جو کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات ہی نہیں ختم نہیں ہو رہی. دیکھیں بڑی اس کے اوپر بڑا ضرورت تھی. اب آج جو ہے وہ علی ظفر صاحب کے آرگومنٹس ختم ہوئے، ہمارے سوموار کی تاریخ ہو گئی ہے. آپ کس طرح سے اتنی جو ہے وہ اس کو سول کیس ہے کوئی، یہ کوئی جو ہے وہ زمین کا کیس ہے جس کو ہم اس طرح سے لے رہے ہیں؟ یہ تو آورلی چلنا چاہیے. جس طرح سے سپریم کورٹ نے جو اسپیکر کی رولنگ تھی 5 دن میں اس کیس کو ختم کر دیا تھا. یہ مقدمہ جو ہے اس کو اتنا لمبا مہینے سے تو تقریباً یہ چل رہا ہے. یہ سارا پنجاب جو ہے کرائسس میں ہے، اور پنجاب اگر بحران میں ہے تو پورا ملک بحران میں ہے، کیونکہ 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو آج جس نقطے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور اس میں بالکل واضح سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے آپ یہ جو ووٹس ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان ووٹوں کو حمزہ شریف کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. اور اس خلاف ورزی کے اوپر اس وقت حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہی ہے، یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، دوسری صورت میں اسپیکر کا ری الیکشن کا آرڈر کریں، اور ری الیکشن ہونا چاہیے. اب اس سمپل نقطے کے اوپر جس طریقے سے آگے دوسرا ایک اور جو تماشا چل رہا ہے، الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 224 جو ہے پاکستان کے آئین کا وہ بالکل واضح ہے. آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ جو ہی ایک ممبر آپ کا ریزرو سیٹ کے اوپر، مخصوص نشستوں کے اوپر ایک جماعت کا
जो मेंबर है वो नाअहल होता है तो दूसरा जो लिस्ट से नीचे है वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है। ये आर्टिकल 224 आइन का। इलेक्शन कमीशन में एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो हमारे मेंबर ही नोटिफाई नहीं कर रहा। जो इलेक्शन कमीशन राजा रियाज साहब जैसे करैक्टर वाले आदमी के दस्तखतों से और उनके नॉमिनेशन से वजूद में आया हो, आप मुझे बताएं उस इलेक्शन कमीशन को कौन क्या उसकी इज्जत होगी? कोई ऑनरेबल आदमी मौजूदा सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट्स हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से आनी है उनमें आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो चेयरमैन नैब का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला हो। कोई इज्जतदार आदमी इस सिस्टम के ज़रिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। अब जिन लोगों ने इस सिस्टम के ज़रिए ओहदे कबूल किए हैं, मुझे बताइए आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो मॉरल फैसले करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने आइन को आर्टिकल 224 को प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224 को। और अभी तक हमारे मेंबरान जो 5 मेंबरान जो पीटीआई को मिलने चाहिए थे वो नोटिफाई नहीं हो रहे। अब वो नोटिफाई क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नोटिफाई नहीं हो रहे कि वो 5 मेंबरान आ जाते हैं तो पीटीआई की और पीएमएलक्यू की तादाद हो जाती है 173 और हमजा शहबाज के पास इस वक्त मेंबरान की तादाद है 172। सो पूरा सिस्टम इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक गैर कानूनी शख्स को वज़ीर आला के ओहदे से चिमटाए रखा जाए। ज़बरदस्ती की जो कोशिशें हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहरान है। ये जो हुकूमत है इसके तमाम फैसले गलत हैं, इनकी तैनातियाँ पोस्टिंग गलत हैं। जिस तरीके से इन्होंने तरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हकीकी आज़ादी मार्च के ऊपर तशद्दुद किया, वो तमाम किसी हकीकी ऑर्डर के बगैर, कानूनी ऑर्डर के बगैर था। तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस हैं इंशाअल्लाह ताला हम उनको निशान इबरत बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो डीपीओज़ और सीसीपीओज़ और ये जो पुलिस के नीचे एसएचओज़ और एहलकार जो लोगों के घरों में गए, जिन्होंने ख़वातीन की वहाँ पे बेहुरमती की, इन तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम निशान इबरत बनाएंगे। और आइंदा किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आइन और कानून से आगे जाके इस तरह से हुकूमतों की ज़ाती चापलूसी करे। हमने इसके ऊपर भी इक़दाम किए हैं इलेक्शन कमीशन के। अब मेरी सदा आज सिर्फ हाई कोर्ट से यही है, देखें इस मुकदमे को कंक्लूड करें। आपने जो भी फैसला करना है, अदालतों को फैसले फिर आप माइंड भी कर जाते हैं जब हम कहते हैं आधी रात को अदालतें खुलती हैं। अदालतों को ना तरीके इंसाफ को सुन के फैसला देना चाहिए, ना नून या पीपल्स पार्टी को सुन के फैसला देना चाहिए। अदालतों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला देना चाहिए। मसला वहाँ पे पैदा होता है जब हम देखते हैं एक पार्टी के लिए आप जो है वो 5-5 दिनों में फैसले होते हैं, सारी रात भी खुल जाते हैं, 12 बजे भी पिटीशन एंटरटेन हो जाती हैं, और दूसरी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, सामने सामने वायलेशन है, आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह तो नहीं जो है वो मुल्क में एक उबाल है पाकिस्तान में इस वक्त। और उम्मीद यही है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे वो लोग जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ओहदों के ऊपर हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपने खिदमात इंजाम दें और किसी पार्टी को खुश करने के चक्कर में ना पड़े। शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि इमरान खान ने कहा था कि 25 को जब लॉन्ग मार्च फॉलो अप हुआ है कि 6 दिन बाद हम फिर आएंगे, क्या स्टेटस है? आज 6 दिन पूरे हो गए हैं, अब 6 दिन बाद कोई नई तारीख आएगी या कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा? अगर 2 महीने फैसला ना आए तो फिर 2 दिन के लिए कॉल ऑफ। अगर तो अदालतों ने फैसले नहीं करने, जिस तरह से आपका ख्याल है कि 2 महीने 3 महीने फैसले नहीं होने, फिर तो इस मुल्क में हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है तहरीक इंसाफ जो है हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, हम कोई शिद्दत पसंद ग्रोह नहीं है जो कि असले लेके आएंगे और इस्लामाबाद को यरगमाल। हमारे तो देखें तहरीक पाकिस्तान के बाद पहली बार अगर ख़वातीन सियासत में हुई हैं तो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से आई। अब ये जो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लोग बच्चे आते हैं, इनको अमन चाहिए। हमारी सजा सिर्फ ये है कि हमें पुरअमन एहतजाज की बोलते हैं। अगर आपका ख्याल है कि उसमें भी 2 महीने लग जाएंगे फिर तो देखते हैं। ये बताया कि आप इस खबर चलती रही है कि बैकडोर आपके नहीं है, यूसुफ अहमद नाली साहब का भी रिकॉर्ड किया है कि आपके साथ मार्च से पहले बैकडोर आपके नहीं है।
आप बता दें कि आपके उनके साथ रास्ते थे मुज़ाकरात के बारे में? बैक डोर को छोड़ दें, हमारे ओपन राब्ते हैं। उन्होंने तो बताया ना कि मुज़ाकरात भी हुए हैं और अब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी जमातों में देखो, कभी भी मुल्क जो होते हैं उनमें ये नहीं होता कि आप आपस में बातचीत ना करें। हमारा मुतालबा क्या है? हम कहते हैं आप बातचीत करें नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। आप ये इसके ऊपर हमारी कोई बातचीत नहीं है कि आपने असेंबली में आना है, नहीं आना, नहीं, वो हम फैसले कर चुके हैं। आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें, उसके बाद हम आपके साथ बैठ के जो फ्रेमवर्क है, इस सिलेक्शन कमीशन के तहत आप कैसे इलेक्शन का करा सकते हैं? ये इलेक्शन कमीशन जो राजा रियाज का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन है, उसको कौन जो है वो तस्लीम करेगा? अब इस इलेक्शन कमीशन को रिप्लेस करना है, हम उसके लिए बिल्कुल नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। नए इलेक्शन की टर्म्स क्या होनी चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हम जो है उनके साथ बैठेंगे। तो हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसके लिए हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि आप इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं या नहीं है? हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है। जो स्पीकर हैं उनके पास इख्तियार नहीं है लहसानी। हमारे इस्तीफे जो हैं वो कासिम सूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें बुला के पूछे कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। अब वाहिद हाल ये है कि आपने 131 हल्कों के ऊपर जो है वो इलेक्शन जब स्पीकर के पास इख्तियार ही नहीं है तो हमारे अधीन वहाँ पे जाके क्या करें? आपने कहा था कि मैंने कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक किए हैं, अब क्या दादा दिन खुलते हाल हैं? नंबर खुलते ब्लॉक होते रहते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालतों को आइन के मुताबिक फैसला करना चाहिए। कराची से आपको अहम खबर देंगे। कराची के अवाम के लिए एक और मुश्किल गैस